توشخانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق 5 دن میں ضمانت پر فیصلہ کرنا لازم، مجسٹریٹ 3 دن میں ضمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وزارت ہوابازی کا پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا ڈی جی 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پر لگانے کا فیصلہ، محکمہ ہوابازی نے اشتہار جاری کر دیا۔ اور اے این ایف کی کراچی میں بڑی کارروائی، نرسری سٹاپ کے قریب واقع کوریئر آفس پر چھاپا، پشاور سے بھیجے گئے پارسل سے الیکٹرانک سامان سے 1 کلو 200 گرام چرس اور بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے حزب اللہ کو دھمکی دے دی، کہا کہ ہمارے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں جو ہم نے ابھی فعال نہیں کی، مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں، ہر مرحلے پر حزب اللہ کو بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اور پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ منیر اکرم نے کہا کہ افغانستان میں فتنہ الخوارج کو افغان عبوری حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے منیر اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستان فتنہ الخوارج کے خلاف قومی سطح پر کارروائی کرتا رہے گا۔ اسرائیل کا لبنان پر دوسرا سائبر حملہ، لبنان میں پیجرز کے بعد واکی ٹاکی، اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپ، ریڈیو ڈیوائسز اور سولر پینل دھماکوں سے پھٹ گئے۔ بیروت اور طائف سمیت مختلف علاقوں میں دھماکے، 20 افراد شہید، 450 سے زائد زخمی، مختلف مقامات پر آگ لگ گئی، اسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ سب سے زیادہ دھماکے دارالحکومت بیروت میں ہوئے۔ حزب اللہ نے حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سے بدلہ لیں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف آج اپنے خطاب میں اہم اعلان کریں گے۔ روس، ایران، ترکیہ، حماس، یمن اور اقوام متحدہ سمیت کئی ممالک کی مذمت، روس نے اسے ہائبرڈ وار قرار دے دیا۔ حملوں کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان مکمل جنگ کا خدشہ اور خطے میں جاری کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ اسرائیل کا غزہ جنگ کے نئے دور کے آغاز کا اعلان، صہیونی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے جنگجوؤں کے خلاف اپنی توجہ شمالی محاذ کی طرف موڑ دی ہے۔ انہوں نے لبنان میں الیکٹرانک آلات کے پراسرار دھماکوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی اداروں کے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نتائج بہت متاثر کن ہیں۔ ایران کے لبنان میں پیجر دھماکوں کی مذمت، اسرائیلی دہشت گردی قرار، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا لبنانی ہم منصب کو فون، ایرانی سفیر کو فوری طبی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ لبنانی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیلی دہشت گردی عالمی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ حماس کی بھی دھماکوں کی شدید مذمت، حزب اللہ کی غزہ میں فلسطینیوں کی حمایت کو سراہا۔ یمن حکومت نے کہا ہے کہ حزب اللہ کشیدگی کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عراقی حزب اللہ کی لبنانی حزب اللہ کو ہتھیار اور جنگجو فراہم کرنے کی پیشکش، امریکہ لبنان دھماکوں میں ملوث نہیں، معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، حملے کس نے کیے اس پر بھی ابھی رائے نہیں دے سکتے، ترجمان محکمہ خارجہ کی بریفنگ۔ آئین میں ترمیم پارلیمان کا اختیار ہے، لیکن ترمیم آئین کے بنیادی خدوخال سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق مختلف وکلاء کونسل کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی۔ آئینی ترمیم کا حتمی مسودہ وکلاء نمائندوں کی کمیٹی سے شیئر کیا جائے۔ وکلاء کے منتخب نمائندوں کے سوا کسی کو ہڑتال کی کال دینے کا اختیار نہیں۔ کچھ مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت پہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو انفینشڈ ایجنڈا تھا اس کے بارے میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ کام کریں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں آیا، اس پہ کہا گیا کہ دیگر بہت سارے ممالک کی طرح یہاں پہ بھی آئینی عدالت کا قیام ہو۔ آئینی عدالت کا مقصد آرٹیکل 184 کے تحت سو موٹو اختیارات کا تعین کرنا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے اور یہ طے پایا کہ انصاف کی فراہمی کے نظام کو آسان بنایا جائے۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا عدالتی اصلاحات کی جائیں، نون لیگ بھی چاہتی ہے عوام کو فوری انصاف ملے۔
वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहात के लिए कमेटी भी तश्कील दी थी। फौजदारी और टैक्स इस्लाहात शुरू कर दी गई। कहा गया कि फौजी अदालतों का क़याम भी होने जा रहा था। शुरू में बिल्कुल ये बात थी। आईनी अदालत पर बहुत तनकीद हुई। क्या किसी ने देखा कि क्या जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार में कोई तब्दीली आई? जो आईनी पैकेज आ रहा है, हम सब बैठे हैं मगर हमें पता नहीं इसमें लिखा क्या है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी रहनुमा फारूक एच नाइक ने कहा कि मेरी वज़ीर कानून से गुजारिश है, ड्राफ्ट तैयार करके स्टेक होल्डर से शेयर करें। स्टेक होल्डर्स की ख्वाहिशात के मुताबिक आईनी अदालत बननी चाहिए। काबीना की मंजूरी के बगैर बिल पार्लियामान के पास नहीं आ सकता। 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाएगी और 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और पीटीआई रहनुमा सेनेटर हामिद खान का कहना है कि हम किसी दूसरी तकर्री को कबूल नहीं करेंगे। 19 सितंबर से वकला की तहरीक शुरू कर रहे हैं। इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान के एजाज़ में ज़ोहराना बड़ी बैठक लगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। मौलाना ने साफ साफ कहा, हुकूमत का मुजव्वज़ा मुसव्विदा यकसर मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसव्विदा नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने ज़ोहराने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसव्विदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं। जो मुसव्विदा मुहैया किया गया वो क्या था? जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने उसका मुताला किया। ये मुसव्विदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल है। पैकेज आया था जो कि जिस तरह छपाया जाता था, यानी आप देख लें कि कभी इस तरह हुआ कि कोई कानून साजी हो और फिर इतना बड़ा एक आईनी पैकेज हो जिसकी 56 अमेंडमेंट थी और वो आवाम तो छोड़े अपने और अपोजिशन भी छोड़े, अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाए रखा। कभी ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा आईनी पैकेज हो और अपोजिशन तो छोड़ें अपने अरकान से भी छुपाया गया हो? हुकूमत ने आईनी तरमीम को अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान के एजाज़ में अपनी रिहाइशगाह पर दिए गए ज़ोहराने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जेयूआई और पीटीआई पार्लियामेंट में जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। मौलाना से तय हुआ है कि अपोजिशन मुशावरत से मामलात आगे बढ़ाएगी। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों के हवाले से उसूली मौक़िफ़ रखती है। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि आईनी तरमीम का ज़ेर गर्दिश मुबैना मुसव्वदा असल नहीं। पीपल्स पार्टी मिसाक़ जमहूरियत और अपने मंशूर के तहत आईनी अदालतों के क़याम के हक़ में है। बिलावल ने इजलास को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर अब तक होने वाली पेशरफ से आगाह किया। दुनिया के ममालिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आईनी मामला जो हैं वो जाते हैं ताकि जो आम शहरी हैं उनके मामलात में जो है वो उनको इंसाफ भी मिल सके। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे 9 मई जैसे केसेस का भी आज तक फैसला नहीं हो सका। केस लोड इतना है कि हज़ारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं। आईनी तरमीम के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का कहना है कि पार्लियामेंट में तमाम जमातों ने सैर हासिल गुफ्तगू की। आईनी तरमीम का मुसव्वदा तमाम सियासी जमातों के पास मौजूद था। दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट अलग होती है और आईनी अदालत अलग होती है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 9 मई जैसे मुकदमात का फैसला भी ना हो सका। पाकिस्तान रूस बैनुल वज़ारती कमीशन के आइंदा इजलास के लिए तैयारियां जारी हैं। बाहमी एहतराम और मफाद पर मबनी दो तरफा ताल्लुकात मजबूत राह पर गामजन हुए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने रूसी नायब वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों ममालिक के तिजारती और माशी ताल्लुकात में इजाफा खुश आइंद है। SCO सरबराह इजलास में रूसी वज़ीर आज़म की शिरकत के मुंतज़िर हैं।
आर्मी चीफ से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। रूसी नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान, दोनों ममालिक के मफाहमत की अहम याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और सेंट पीटरबर्ग इंटरनेशनल मर्केंटाइल एक्सचेंज के मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ट्रांसपोर्ट को कॉरिडोर के लिए मफाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। बैनुल-अक़वामी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बेलारूस, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया के बादशाह चार्ल्स स्वयं से टेलीफोनिक राबता। शाह चार्ल्स की शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की बाकायदा दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि समोया में कॉन्फ्रेंस दौलत मुश्तरका की तारीख का अहम इजलास होगा। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उनका 8 सितंबर का खिताब याद दिला दिया। कहा कि मोहतरम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब, आपकी पंजाब पे लश्करकुशी और हमले की धमकी को 10 रोज गुजर गए, 5 रोज रह गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर के लेकिन हतमी फैसला ना दे। एहतसाब अदालत में रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जराह मुकम्मल ना हो सकी। वकला सफाई की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। बैरिस्टर सलमान सफदर और ज़हीर अब्बास चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। समाअत मुलतवी की जाए। केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज महफूज फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक महफूज शुदा फैसला सुनाएंगे। शोएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी की ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त पर आज महफूज फैसला सुनाया जाएगा। GTV की खबर पर एक्शन। तमाम बड़े शहरों में पासपोर्ट बैकलॉग खत्म। फॉरेन मिशंस, ऑनलाइन और होम डिलीवरी के तमाम केसेस भी निपटा दिए गए। GTV ने पासपोर्ट बैकलॉग की वजह से लोगों को होने वाली शदीद मुश्किलात की खबर दी थी। DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मुस्तफ़ा जमाल के मुताबिक तमाम बड़े शहरों में पासपोर्ट का बैकलॉग सिफर कर दिया गया है। मुल्क भर में पासपोर्ट इजरा के हवाले से बैकलॉग भी जल्द खत्म हो जाएगा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर ब्रीफिंग ली तो सुनकर औसान खता हो गए। 5 साल में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। PTI के एजुकेशन मिनिस्टर ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, हमारी कोशिश है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। एजुकेशन के मेयार को बेहतर करने में कामयाब होंगे। पहले मरहले में 5800 स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। फेज 1 में आउटसोर्स होने वाले पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए बुरी खबर। आउटसोर्स होने वाले स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के बाद फैसला किया जाएगा कि नॉन सैलरी बजट कहां इस्तेमाल होगा। फेज 1 में 5863 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। इलेक्ट्रिक सार्फिन को मुसलसल माहाना और सेमाही एडजस्टमेंट का सामना। रवामा सार्फिन ₹2.74 फी यूनिट अदा करेंगे। अक्टूबर में माहाना और सेमाही एडजस्टमेंट में फी यूनिट ₹4.33 अदा करेंगे। इलेक्ट्रिक सार्फिन सेमाही एडजस्टमेंट में सितंबर ता नवंबर में ₹1.74 अदा करेंगे। गजा के इलाके रफा में मज़ाहमतकारों ने सेहोनी फौज की गाड़ी बारूदी सुरंग से उड़ा दी। 4 सेहोनी फौजी हलाक और कई जख्मी। सेहोनी फौज फलस्तीन के दुश्मन गजा सिटी, दीर अल बला और नसीरात कैंप पर शदीद बमबारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। बच्चे और खवातीन भी निशाना बने। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइल की फ़लस्तीन में गैर कानूनी मौजूदगी के खिलाफ करारदाद अक्सर राय से मंजूर।
ریاست فلسطین کی پیش کردہ قرارداد پر ووٹنگ ہوئی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کی مشاورتی رائے کے بعد 12 ماہ کے اندر مقبوضہ فلسطینی علاقے میں اپنی غیر قانونی موجودگی ختم کرے۔ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے مراسم قائم نہیں ہو سکتے۔ سعودی عرب 2 ریاستی منصوبے کی حمایت جاری رکھے گا۔ سعودی مجلس شورا کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ریاستی انتخابات کے پہلے مرحلے کی دوڑ، 90 حلقوں میں سے 24 میں ووٹنگ مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری۔ پولنگ سٹیشنز پر صبح سے ہی ووٹرز کی قطاریں لگی رہیں۔ ہزاروں بھارتی فورسز کے اہلکار تعینات، وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا۔ اور ICC ویمن ورلڈ کپ ٹرافی آج پاکستان پہنچائی جائے گی۔ 4 روزہ دورے پر ٹرافی کی رونمائی آج پاکستان بمقابلہ ساؤتھ افریقہ ویمن میچ کے بعد فیصل آباد میں کی جائے گی۔ فیصل آباد میں جاری چیمپئنز کپ میں بھی ٹرافی دکھائی جائے گی۔